Hello everyone, welcome again to online session of Manu Law classes. I'm Dinesh Kumar and I'm former assistant professor of law at Campus Law Center Law Faculty, Delhi University. Presently I'm working as an academic head of Manu Law classes. So dear students, in today's session I will discuss with you the detailed subject wise strategy for CLAT 2023. I will discuss legal aptitude part with you, that which subjects are important and which topics are important of that particular subject. Before moving to the main discussion part, there is an important announcement for all of you. Admissions are open at Manu Law classes for 1 year and 2 year course program for 2023 and 24 CLAT examination. All of you may get yourself enrolled with us, and for more information you can dial on the given number, that is 9971444054. So dear students, I will discuss with you the legal aptitude subject, that what all you should do to get the maximum score in your legal aptitude part. So dear students, in law there will be 8 passages in your examination, and out of these 8 passages around 5 to 6 passages will be asked based upon these 4 main subjects. Subject number 1 is Indian Contract Act, second is Constitution of India, third is Indian Penal Code, and fourth is Law of Tort. So out of 8 passages में से 5 से 6 पैसेजेस आपके इन 4 सब्जेक्ट से होने वाले हैं. I am telling this on the basis of my vast experience of teaching law. I am teaching law since even before the inception of this CLAT examination 2008. तो 2008 से ही मैं एग्ज़ाम के पैटर्न को देखता आ रहा हूँ. अभी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, मीन्स पैसेज बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ है. अर्लियर इट यूज टू बी दिस प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड MCQ बेस्ड. सो on the basis of this experience, I'm telling you that 5 to 6 passages you will get from these 4 subjects. Now we come to next. As far as this first Indian Contract Act, so I have taken this Indian Contract Act firstly because it is most important subject from the CLAT examination point of view. What you need to do in the CLAT in the contract, देखिएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है. वन इज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, and second is the special contract. This part, general principles of law of contract, is contained from section 1 to 75 of ICA. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं. These general principles of law of contract are very important from your examination point of view. For example, offer. So in this video I am discussing with you the most important topics from your examination point of view and the most important sections from where the examiner can take the passages, and the passage can be asked in your examination. First of all,
देखिएगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 1 to 75 होते हैं और ये जो रूल्स हैं दीज आर एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड इज द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, etc. सो जनरली एग्जामिनर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ऐसा मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क 2 पैसेजेस फ्रॉम दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सो 2 पैसेजेस विल बी फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो 95% क्वेश्चन आपका या पैसेज आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आएगा एंड 5% पैसेज आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। सो यू नीड टू फोकस मोर अपॉन दिस जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो टॉपिक नंबर 1 इज ऑफर, सेकेंड इज एक्सेप्टेंस। इन CLAT examination 2021 there were 15 questions from this topic acceptance। 15 क्वेश्चन केवल टॉपिक एक्सेप्टेंस से रिलेटेड थे। नेक्स्ट इज द कंसिडरेशन, नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सो आप अपने CLAT एग्जामिनेशन के लिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, so you need to focus upon these sections, section 1 to 34, 40, 56, 62, 68 to 72 and 73 and 74। यहीं से आपको 100% आपका पैसेज फॉल कर जाएगा। ठीक है। सेकंड, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर, गिव लेस इंपॉर्टेंट टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको कम इंपॉर्टेंस देना है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको किसको देना है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये सेक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सेक्शन से आपका पैसेज बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज यू शुड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सॉल्विंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू विल स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम द बुक्स और द मटेरियल ऑफ our institution or from any other books, then after thoroughly understanding this concept you should solve the previous year questions। आपको previous year question को solve करना चाहिए, क्योंकि previous year question को जब आप solve करते हैं you are able to understand the nature of questions or the difficulty level of the questions। आप क्वेश्चन का difficulty level को देख पाते हैं। मोर एम्फेसाइज ऑन द कंसेप्ट क्लियरिटी। यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई हैव रियलाइज वन फैक्ट दैट इफ ए स्टूडेंट्स कंसेप्ट आर क्लियर देन दैट स्टूडेंट कैन परफॉर्म और दैट स्टूडेंट जनरली परफॉर्म बेटर इन कंपैरिजन टू द अदर स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, किसी भी कंसेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं। आपको किसी भी कंसेप्ट को रटना नहीं है, बल्कि आपको उस कंसेप्ट को थॉरोली समझना है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। एग्जामिनर बस आपसे ये पूछता है वेदर योर पर्टिकुलर कंसेप्ट्स आर क्लियर और नॉट। फॉर एग्जाम्पल ऑफर, तो ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑल ऑफ यू मस्ट नो अबाउट दिस। तो मेरा आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप लोग कंसेप्ट क्लियरिटी पर ज़्यादा फोकस करें, लिमिटेड स्टडी करें, बट जो भी आप स्टडी करते हैं, जो भी आप टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट मस्ट बी फुली कवर्ड और यू मस्ट हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ वी कम टू नेक्स्ट subject, that is the Constitution of India. So in Constitution of India some topics are important from where the examiner will ask the question.
One is the preamble, second is fundamental right, directive principles of state policy, and union executive. I have seen your previous year question paper, and 95 to 98 questions, 98% questions have been asked by the examiner from the fundamental rights. ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर वो फंडामेंटल राइट से पूछता है, और फंडामेंटल राइट को भी अगर मैं स्पेसिफिक करूं, देन ही आस्क द क्वेश्चन राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी से क्वेश्चन पूछता है। और अगर मैं राइट टू इक्वेलिटी को भी और स्पेसिफिक करूं, क्योंकि राइट टू इक्वेलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, सो ही आस्क क्वेश्चन बेस्ड अपॉन आर्टिकल 14। कॉन्स्टिट्यूशन के अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जैसे मैंने अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट का बताया, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप से नहीं होगा और डीप अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट की अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यू शुड हैव सम डीप नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में you should not only have the knowledge regarding article 14 that provides for equality before law and equal protection of law, बल्कि आपको इसके जो अदर पार्ट्स हैं लाइक रीजनेबल क्लासिफिकेशन, क्लास लेजिस्लेशन, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है, यू शुड फोकस मोस्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। मीन्स अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 80% फोकस आपका फंडामेंटल राइट पर ही होना चाहिए। 20% में आप डीपीएसपी, प्रीएम्बल, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड अदर चैप्टर्स और अदर पार्ट्स आप कर सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जामिनर इज सपोज टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के केवल आर्टिकल पढ़ेंगे या केवल वन लाइनर पढ़ेंगे या थोड़े से कंसेप्ट को समझेंगे, you may not be able to solve the question in your examination. Next क्या है कि you should also know about some important landmark judgment. Some of them I have mentioned here. One is the Sarla Mudgal. So Sarla Mudgal is very very important judgment, or in 2022 there was a passage based upon Sarla Mudgal, read with Special Marriage Act 1954। सो सरला मुदगल की सिचुएशन को ही एग्जामिनर ने स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ जोड़कर एक पैसेज आपसे पूछा था। इफ़ यू हैव सीन द 2022 क्वेश्चन पेपर, यू मे कोरिलेट इट। ठीक है। सेकेंड इज सम अदर लैंडमार्क जजमेंट लाइक केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरह के कुछ जजमेंट आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। तो मेरा फोकस ये है बच्चों, मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि यू शुड क्वालिटी स्टडी। मीन्स क्वांटिटी पे आपको ध्यान नहीं देना है, बट क्वालिटी आपको स्टडी करनी है। इफ़ यू आर फोकसिंग अपॉन और इफ़ यू आर स्टडिंग अपॉन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टॉपिक, देन यू मस्ट हैव द थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। तो मेरा सजेशन ये है बच्चों कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको कम पढ़ना है, और कम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन 95 और 98% यहीं से आपको फॉल करेंगे। नेक्स्ट द इंडियन पिनल कोड। देखिएगा, इंडियन पिनल कोड इज वेरी वाइड सब्जेक्ट, इट कंटेन 511 सेक्शन इटसेल्फ, लेकिन आपको फोकस करना है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी सेक्शन 34, 149। नेक्स्ट जनरल एक्सेप्शंस सेक्शन 76 to 106। अटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सो अटेम्प्ट के लिए कुछ सेक्शंस हैं हमारे 307, 308, 309 एंड 393। दीज 4 सेक्शन प्लस 511। तो दीज 5 सेक्शंस आर रिलेटेड टू द अटेम्प्ट। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 2 ही सेक्शन आपको पढ़ने हैं, 120A और 120B, और एक और होता है इसमें सेक्शन 124A सेडिशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क, और एग्जामिनर विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। सो आपको आईपीसी के सारे सेक्शन नहीं पढ़ने,
आपको आईपीसी के सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ने, रादर यू नीड टू फोकस मोस्टली ऑन दीज टॉपिक्स और दीज कंसेप्ट। जो आईपीसी के बचे हुए कंसेप्ट हैं वो आप 15% पढ़ें, यू शुड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोज कंसेप्ट, लेकिन आपको 85 फोकस आपका इन पर्टिकुलर कंसेप्ट पर ही होना चाहिए, और पर्टिकुलरली जनरल एक्सेप्शन, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ, एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से इसी एरिया से पर्टिकुलरली पूछ लेता है। सेकंड, आईपीसी में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी थ्योरी। सेकेंड इज द नवतेज सिंह जौहर, जो अभी सेक्शन 377 को हटा दिया गया है। एंड नेक्स्ट इज जोसेफ शाइन। जोसेफ शाइन में 497 को पार्शियली स्ट्रक डाउन करा गया कि 497 डील्स विद द एडल्ट्री। सो आईपीसी पे जो नए केसेस आ रहे हैं, लाइक द केसेस रिलेटेड टू दिस मैरिटल रेप, और दूसरा कंसेप्ट आपका ये है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई दिस प्रोस्टिट्यूशन फॉल्स अंडर द आर्टिकल 19(1)(g एज ए प्रोफेशन। इस तरह से जो लेटेस्ट जजमेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आ रहे हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, एंड पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीसी। तो आईपीसी पे जो भी लेटेस्ट जजमेंट आता है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, दिस द लॉ ऑफ टॉट। तो लॉ ऑफ टॉट में क्या है कि लॉ ऑफ टॉट में क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। लॉ ऑफ टॉट में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम, strict liability, absolute liability, vicarious liability and defamation. So I have suggested some important topics. Generally examiner asks the question either upon injurious and damnum, or he takes the concept of voluntary non-fit injuria. तो वो voluntary non-fit injuria से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, and it is the favorite topic of the examiner. सो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया को आपको बहुत ही थॉरली अंडरस्टैंड करना है विद दिस टू एक्सेप्शंस। वन इज द स्कैंटी नॉन फिट इंजूरिया एंड सेकंड इज द रेस्क्यू केसेस। सेकंड, इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ने हैं, लाइक एशबी वर्सेस वाइट है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, रैलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, और जिसमें कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को इनिशिएट किया गया था। सिमिलरली MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1987, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस इनशिएटेड द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी कंसेप्ट को दिया था। नाउ वी कम टू सम अदर सब्जेक्ट्स from where the examiner can ask the question. So as I discussed with you, from these 4 subjects you will get 5 to 6 passages. अब क्वेश्चन आता है कि हमारे नेक्स्ट 3 पैसेजेस कहाँ से आएंगे। तो बच्चों देखिए क्या है, नेक्स्ट 3 पैसेजेस का सोर्स जो है वो ये 4-5 लॉज हैं। फॉर एग्जांपल, वन इज ADR। ADR से वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। ADR में आते हैं आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशंस एंड मीडिएशंस। तो यहाँ से एक पैसेज आपको एग्जामिनर दे देता है। सेकंड इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि ये ऐसा कानून है जो कि रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहा है। यू नीड नॉट टू स्टडी द होल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, रादर यू नीड टू स्टडी सम कंसेप्ट और सम स्पेसिफिक क्राइम्स गिवन विच हैव बीन गिवन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, लाइक फिशिंग, किसी की इंफॉर्मेशन को चुराना, है ना, साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, इस तरह से साइबर टेररिज्म क्या है। तो यू मे गेट द वन पैसेज बेस्ड अपॉन दिस। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से एक क्वेश्चन या एक पैसेज आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है। कौन सा पैसेज होता है? दिस पैसेज में बी बेस्ड अपॉन कॉपीराइट एंड दिस पेटेंट एक्ट। तो IPR में भी यू शुड नीड टू फोकस अपॉन दिस कॉपीराइट एंड पेटेंट। जो डिज़ाइन है वो इतना नहीं करना। एंड वन मोर लॉ इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो IPR में आपको ज़्यादा फोकस करना है कॉपीराइट एक्ट पर, पेटेंट एक्ट पर और जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट पर। इसी से आपको एक पैसेज मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लॉ।
अब नाउ ये इंटरनेशनल लॉ जो है, एग्जामिनर समटाइम आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ एंड समटाइम ही डज नॉट आस्क. In the CLAT examination 2022, examiner has asked one topic of international law, that is the dualism theory and monism theory. So these are the theories of recognition. Recognition is a concept of international law. तो वहाँ पर एग्जामिनर ने dualism और monism को पूछा है. So you should more focus upon international law. इंटरनेशनल लॉ के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंने रिकॉग्निशन बताया, सक्सेशन बताया, और मैं बताता हूँ आपको लॉ ऑफ सी, ये 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रिकॉग्निशन, सक्सेशन एंड लॉ ऑफ सी. तो एटलीस्ट यू शुड डू दीज 3 टॉपिक्स, और वन यू मे ऐड इज द ट्रीटी. एंड नेक्स्ट इज द करंट लीगल जीके. तो जनरली 2 पैसेजेस you will get from these 3 subjects. Now we come to one passage. तो one passage की कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई और दे सकता है. One passage can be taken by the examiner from any law, whether that law may be this old law or that law may be the new law. So इस पे आप क्या करेंगे, सेफ साइड के लिए you will study the latest laws of our country. जो भी लॉ अभी बन रहे हैं या पार्लियामेंट ने उनको एनेक्ट कर दिया है. सिमिलरली यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट द करंट लीगल जीके. तो वहाँ से भी एक पैसेज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. 7 पैसेजेस आर कन्फर्म फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी. 1 पैसेज may be asked by the examiner, and this passage may be based upon any law that is controversial or some latest law, or it may be based upon the law commission report. It may also be based upon the landmark judgment of honorable supreme court. So एक पैसेज कहीं से भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है. So you have to focus upon these 7 passages which are sure and which you will get from the information given by me. So that's all for today, my dear students. I will come again with this kind of information which is very useful for your examination. Till then, thank you very much. Goodbye. Hello friends. Now in this section we are going to discuss the strategy which you should adopt for cracking general knowledge and current affairs for CLAT 2023. Now many of you who have started with the preparation, so for them I have simplified the procedure. The first is that you should go through syllabus and past year paper. The next is identifying the nature of topics which have been asked in exam. The next is identifying the sources, then making notes, then revision and mock test, and the most important thing is making your schedule daily, weekly and monthly. Now on each of these specific points, now I will discuss in detail. The first is past year papers and syllabus. So friends, in spite of knowing the fact that what was important in current affairs last year was not important this year, but then also you have to go through syllabus of CLAT 2023 and also through the past year papers of CLAT. Now if you go through the syllabus, you will come to know the scope, or you can say topics which are mentioned in the syllabus. So this scope or topic which has been mentioned in the syllabus, it gives you important pointers based on which your preparation surrounds. क्योंकि करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्कोप इसका आइडेंटिफाई करना बहुत ही दिक्कत होता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट विच विल बिकम इम्पॉर्टेंट, विच विल बी लेस इम्पॉर्टेंट. सो ओवर हियर if you will just go through the syllabus once, twice, thrice, and if you go to the past year paper, you will get an idea the level which is required for studying any piece of information from newspaper or from any sources, and what type of news you should look upon. So please, the first strategy is that you have to go through syllabus and past year paper. Once you are going through the syllabus and past year paper, you have to identify the nature of topics asked in exams. For example, if you will just see that nature of topics का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप सेक्शन डिफाइन करेंगे कि इकोनॉमी से कितना आया है, फॉरेन अफेयर्स से कितना आया है, ओके, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ कितने आए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड न्यूज़ कितने हैं, सोशल इश्यूज़
या नेशनल इश्यूज यू कैन से, ठीक है, कितने आए हैं और वो नेशनल इश्यूज कौन कौन से आए हैं. फॉर एग्जांपल sometimes students they ask me that which national issue is important, so over here we have to keep in mind that the कोई भी इशू नेशनल इशू नहीं हो सकता, बट नेशनल इशू वही होता है जिसमें इफ यू विल जस्ट सी दैट देयर आर सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व एंड विच इज रेपिडली कमिंग इन द न्यूज़पेपर फॉर एटलीस्ट अ वीक. फॉर एग्जांपल recently there was a scheme called as Agnipath scheme. Now this Agnipath scheme, it came for in the newspaper for almost 1 to 2 weeks. Okay. Second, there was significant stakeholders involved in Agnipath scheme. Stakeholders are like government, defense forces, okay, youth, okay, youth of our country. All these people were involved and this news was coming in newspaper repeatedly. Such news becomes very important, okay, where we have large amount of stakes involved. Fine. For example, from the international affairs you must be going through BRICS. Okay, so the 14th BRICS summit, India is a member of BRICS and the summit was hosted by China. So the important outcomes of BRICS, so such type of nature of topics you will come to know after going through the past year question papers. Once you know the nature of topics that is being asked in the exam and type of questions which are being asked, for example here you will only not focus on the nature of topics but also nature of questions कि उनकी टफनेस लेवल क्या है, ठीक है, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, किस ऑप्शंस से के साथ आ रहे हैं, ऑप्शंस को कैसे फ्रेम किया जा रहा है. ऑल दैट यू विल स्टडी, देन यू विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू विद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. ओके, so once you have gone through your syllabus, past year papers and you have identified the nature of topics which are asked in exams, now you will have a clarity of what to do in GK and current affairs. So your one part of problem is solved. Now coming to your second part of problem, the second part of problem is studying itself. ठीक है, कि स्टडी के लिए क्या किया जाए. अभी तो आप एक बैकग्राउंड बना रहे थे कि भाई क्या पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तो किस किस पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, तो ये सारी चीज़ें हो गई. अब एक बार आप लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि भाई ये सिलेबस है, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर, दिस इज़ द टाइप ऑफ questions asked in the exam, these are the various fields from which the questions can be asked. Now the third important thing is sources. What should be the sources? So for general knowledge and current affairs, the best source we can have is of newspaper. ठीक है, newspaper is the best source for doing general knowledge and current affairs. But in newspaper also you don't have to study all the news which are there in newspaper. Again you will take the help of your syllabus and past year papers and the nature of topics which you have identified to work out that which topics are going to be important from the newspaper. Also you can follow our daily Hindu analysis video, okay, which is uploaded on the which you can find on the Manu Law Classes Private Limited YouTube channel for going through the important news of the day. Over here every day the Hindu news is discussed, the important news in the Hindu edition is discussed for the benefit of our students. Okay, now once you are clear with the sources that okay I have to do it from the Hindu newspaper, you can take the Hindu or Indian Express. Okay, you don't have to follow multiple newspaper, only one newspaper will suffice. So once you are clear with the sources, then you have to go through the next one, making notes. Now making your own notes is very important. Why? Because it helps you in quick revision and also it serves you better during the exam time. So whenever you are making the notes of any scheme, so always go section wise. Okay, you can have a A4 sheet for different topics. For example, you can maintain different sheets for defense, science and tech, economy. You can maintain different sheets over here. Economy हो गया, ठीक है, फिर national issues, awards. Okay, like this you can maintain separate sheets and whatever news is coming on related to that,
you can just go on writing over there. Okay, so you will find that you have a very sorted out notes. So you are making your notes, and after making notes, you have to don't have to fill all the information in notes. You can also use keywords while writing the notes. So keywords is also important. Like for example, if you write only one keyword, and it will help you to remember all the information related to it. So use keywords in making your notes so that your notes is crisp and is not very lengthy. Don't try to make your notes in another newspaper. Don't just try to copy it from the newspaper as it is written. Try to write it in your own words and using keywords so that your notes does not get spread too much. Otherwise it will not be helpful during revision and during the last days of the exam. The next is that once you start making the notes, the next topic where you should focus is on revision and making the mock test. Now revision and mock test is very important for you, so that you can check your progress. Whatever you are doing, is it in a right direction or a wrong direction? So revision is very important so that you can recollect very fast during the exam. And the second is mock test. Giving mock test is very important so that whatever you know, how you apply that concept in the newspaper to score the marks, in the question paper to score the marks, that is very important. So giving mock test regularly, doing revision is a part of your, is a central theme or central part of your strategy for general knowledge and current affairs. I tell you, if you are not doing this, and if you are following A, B, C, D all, and if you are not focusing on revision and mock test, then whatever you are doing from A to D is not going to help you during the exam. So after following A, B, C, D, you have to focus on E, that is revision and mock test. Now the next thing is that we sometimes we tend to we just don't know that why we are spending our time. Okay, बहुत ज़्यादा टाइम पिलफरेज का एक इशू रहता है टीनेजर्स के साथ. So to curb that, you have to make your schedule. Your schedule should be daily, weekly and monthly. Now how to make the schedule? Give me some time, I will show you. Now see, first of all, like suppose you have 6 months, okay, for exam. Now break all the topics, whatever you are going to do. For example, it is July, so July, August, September, October, November, like this, December, January. So नवंबर तक लेते हैं, ठीक है. अब आप हर महीने में आप कौन कौन से टॉपिक्स ख़त्म करने वाले हो उसका एक लिस्ट बना लो. फॉर एग्जांपल आप लीगल में कौन कौन से टॉपिक्स ख़त्म करोगे उसका लिस्ट बना लो. इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स ख़त्म करोगे उसका लिस्ट बना लो. सेम फॉर QA, LR and same for current affairs. Okay, so prepare this schedule for every month. Once you have got this, so now come to the month of July. So in July you have 4 weeks. Okay, 1, 2, 3, 4. So just see that in what is the target of July and how you are going to cover it up in 4 weeks. Okay, so this tentative schedule will give you an idea that what you are targeting for in 6 months and what you are targeting for this month. Once you have got your weekly schedule, so now break that weekly schedule in your daily schedule. Okay, that each day how much you are going to do so that you can attain your weekly targets, which will help you in doing in achieving your monthly targets. Okay, making the schedule is very important part. Okay, because it helps you to direct you. But क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे पास schedule नहीं है तो sometimes we just go here and there, fine. But if we have a schedule, so we stick to the schedule, and if our schedule is on time, we are completing the chapters on time, so it gives us confidence that yes, within this month I can do and I can crack this exam. Okay, so schedule is very important. First, to check the time pilferage, second, to boost your confidence, and third is that within time your preparation is complete, it improves and your efficiency is maintained. Okay, so these are the core strategy for general knowledge and current affairs. Fine. Now some other tips which I will share related to GK and current affairs.
The first is that while reading newspaper, suppose if you are reading newspaper, while reading newspaper, always give yourself a target that within this much time I will complete the reading of newspaper. So always have time target for newspaper. अपने आप को टाइम दे के ही रीडिंग करने जाओ, अदरवाइज व्हाट विल हैपन दैट यू विल कंटिन्यू रीडिंग द न्यूज़पेपर, इट विल टेक होल डे. So always keep in your mind, give yourself target that you are going to complete the newspaper reading within this much time. Second is that don't read political news. Okay, don't read political news. Yeah, the news related to political party or small news like this happened and 4 people died, that happened, 2 people died. No, fine. So don't read these types of news. Third, that if there is an interview, okay, either interview is of any prominent person, then you can read. But if the interview is such that where someone is giving his or her point of view on certain things, okay, and it is not adding on the factual knowledge of the subject, okay, so you can give up on that. Fine. The fourth is that you will not follow state news while reading the newspaper. Okay, state news, they are not important for our CLAT or ALET. So you will follow one rule, at least one editorial per day. You will read at least one editorial per day, which is very important for you. Okay, at least one editorial per day. So this will boost your reading habit. It will help you in English section. Along with that, you will go through any new words, keep that words with you, write down their meanings and start memorizing it. It will help you in vocabulary also. Okay, that is a fifth. Sixth, don't follow multiple sources which has same content. ये बहुत बार देखा गया है पर ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए. Don't follow multiple sources for same content. ये आप कभी मत करना, ठीक है. If you are reading Indian Express, stick to it. If you are reading Hindu, stick to it. If you are reading any one book for static GK, stick to it. Try to complete it. Try to do more and more revision of the same thing. Okay, rather than doing much of the things for the single time. ये कभी मत करना कि एक ही कंटेंट को आप दूसरे बुक से पढ़ रहे हो ना, एक ही बुक से बार बार पढ़ते रहो. ओके, वन बुक मोर रिविजन, दैट शुड बी योर फिलॉसफी. ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ मनु लॉ क्लासेस. जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं क्लैट और एलेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर 2023. आपने अच्छी तैयारी शुरू कर दी होगी आई गेस. इफ़ यू हैवंट डन सो जस्ट इनरोल. अगर नहीं करा हुआ है तो स्टार्ट करना शुरू कर दे, ठीक है. सो आज के क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच फॉर एलेट and CLAT 2023. So specifically CLAT 2023 is scheduled in the month of December. So until or unless we get any notification that it is getting postponed or something, we will be keeping that in mind कि 18 दिसंबर को आपका CLAT होने को है एंड आपकी जो प्रिपरेशन स्टडीज है उसी को ध्यान में रख के हम ये वीडियो बना रहे हैं. एलेट नीडलेस टू टेल कि वो आपका अगले साल ही होगा, अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है. बट हाँ, जो स्ट्रेटजी क्लैट के लिए है वही स्ट्रेटजी आपकी एलेट के लिए भी होगी इंग्लिश सेक्शन को लेकर. बिकॉज वी सॉ देयर वर टोटल 9 पैसेजेस, है ना, इन ऑल टुगेदर एंड देयर वर अराउंड 50 क्वेश्चंस. सो अगर आपने एलेट 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा हो, है ना, वी आर प्लानिंग फॉर 2023. सो आप ये समझ गए होंगे कि एलेट इज़ ऑल्सो प्लानिंग काइंड ऑफ सेम एज क्लैट, जिसमें कि वो भी रिगरस रीडिंग की ज़रूरत को मांग रहे हैं, है ना. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन. देयर आर सम फ्यू पॉइंट्स विच आर वेरी यूनिवर्सल विच यू हैव टू डू, विच बीइंग अ लॉयर डज. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इज न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ मस्ट. व्हाई इट इज़ अ मस्ट? अब देखो, अगर आपने क्लैट 2020 को एनालिसिस करा है, यू माइट हैव फाउंड दैट ओनली fictional non-fictional passages were there in the CLAT paper, right? And non-fictional stuffs are found in basically newspaper or some autobiography or something. So basically that were kind of stories and extract from some novel or
newspaper patches. So the time is the constraint for everyone. Okay, so let's say you have to solve 6 passages. Okay, 6 passages, and you are given 2 hours to solve that complete paper. So your speed must be in a way that you do it within 25 to 30 minutes, all these 6 passages. All right, and how are you going to develop that reading speed? That only comes by practicing a lot. There is no shortcut that you can do a reading comprehension faster than reading faster. Okay, so when you read fast, when you read words, when you read some article, you come across a lot of vocabulary that you do not know. And in CLAT, basically they will be asking so many words. Basically the CLAT paper and ALAT paper that I went through, and I found out that it is total a game of vocab. If you are good at vocab, you can easily inference the meaning, because sometimes there were words, if you do not know the meaning, you cannot infer the information that has been sought. Okay, so the first point is reading newspaper. You can take any newspaper out of these two, the Hindu or the Indian Express. Okay, what you need to do is take 30 minutes of your daily time, okay, and read an article. I'm not writing that all the articles. So in Hindu there are basically, in editorial section you will find 4 news. Okay, so 1 2 3 4 articles in editorial page. Okay, so what I recommend you to do is start reading the first article. For the first time when you read it, make sure that you are underlining the words that you do not know. At the same time, you are googling it or looking it up in dictionary, and write the meaning at the same time. So when you do it for the first time, you understand the passage 50%, and if you just stop it by that time, you will never be able to recall those words. So what you need to do is, if you want to increase your reading comprehension skill, if you want to improve your comprehension skill, make sure that you are reading that article again with the meaning now. So first time when you just mark it, read it, your mind gets distracted, so you just get 50% of the article, right? But when you read for the second time, you understand it completely. But I recommend you, if you want to be a speedy reader, make sure you are reading it for the third time also. You would be saying, sir, why putting a lot of effort in only one article when you have 2, 3 and 4? सी देखो, मैंने पहले भी बोला है कि किसी एक आर्टिकल पे मेहनत करना इज़ फार मच बेटर देन रीडिंग 3 आर्टिकल 1 टाइम. ओके, सो रीडिंग 1 आर्टिकल 3 टाइम्स इज फार मच बेटर देन रीडिंग 3 आर्टिकल्स. ओके, क्योंकि आप तीनों आर्टिकल पढ़ तो दोगे, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, बट जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारा एग्जाम का टारगेट है, वो है आपकी कॉम्प्रिहेंशन और वो है आपकी वोकैबुलरी, वो तो नहीं हो पाएगी. आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी, हाँ ठीक है, आपको पढ़ने में, बट वोकैब का क्या करेंगे. सो व्हेन यू रीड एन आर्टिकल, यू कम अक्रॉस वर्ड्स, एंड उस वर्ड में से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी मीनिंग क्या है. और दूसरी बात, जब आप पढ़ोगे, जब आप थर्ड टाइम पढ़ोगे उस आर्टिकल को, तो आप कंप्लीटली समझ सकते हो, ठीक है. बट देयर आर सम स्टूडेंट्स, उन्हें लगता है कि नहीं 2 बार में भी पॉसिबल है. दैट वर्क्स इफ़ यू थिंक कि आपका 2 बार में ही 100% आप समझ लो. आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे कोई हिंदी का एक्सट्रैक्ट आपके सामने लिखा हुआ है, सिंस योर मदर टंग इज हिंदी, तो अगर कोई हिंदी का आर्टिकल आपके सामने आ जाए, तो आप एक ही बार में पढ़ लेते हो, आप समझ जाते हो कि कहना क्या चाह रहा है ना. फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप बता दोगे आराम से. क्यों कर पा रहे हो आप ऐसा? इवन दो कि हिंदी एडिटोरियल में भी, आपके दैनिक जागरण में जो आपका एडिटोरियल सेक्शन होता है, उसमें भी हिंदी के बहुत ही अच्छे वर्ड्स लिखे होते हैं, पर फिर भी आप समझ जाते हो क्योंकि योर मदर टंग इज हिंदी. तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए, आप कैसे बता पाओगे? क्यों? क्योंकि आपने उस आर्टिकल को न केवल पढ़ा है, बल्कि आपने उस आर्टिकल को कॉम्प्रीहेंड भी करा हुआ है, ठीक है. द सेम वे यू हैव टू अप्लाई द सेम मेथड. मेक श्योर यू आर रीडिंग एन आर्टिकल 3 टाइम्स. अगर ये प्रूव ना हुआ बेहतर आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर 3 बार पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा. आपको मैं ज़रूर जवाब दूंगा, क्योंकि 3 बार इज समथिंग दैट यू कैन आराम से कर सकते हो. तो एक आर्टिकल उठाया आपने, उसे 3 बार कम से कम पढ़ा, जिससे आपका क्या क्या फ़ायदा है? पहला, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है. जब तीसरी बार में आप पढ़ते हो, आप स्पीड में पढ़ पाते हो समझते हुए. दूसरी, आपकी कॉम्प्रीहेंडिंग बढ़ती है. अंडरस्टैंडिंग अलग बात है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल इंप्रूव करना है, ठीक है. तीसरा, आपको बहुत अच्छे वोकैब भी मिल जाते हैं, जो कि 2-3 बार आपके इनकलकेट हो जाता है पढ़ते पढ़ते, ठीक है.
सो इसलिए रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो दूसरा काम करना है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना। देखो कोई चीज़ पढ़ते रहना से नहीं पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड, बट आपने अच्छी रीडिंग करी, अब आपने 30 मिनट का समय निकाला अपने 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप करने बैठोगे मोस्टली 6 मिनट लग जाते हैं, 6.30 मिनट भी लग जाते हैं, उसको स्पीड धीमे धीमे कम करना है। तो आप 5 पैसेज का पर डे टारगेट बनाओ, 30 मिनट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि कोई चीज़ जो प्रैक्टिस से आना है वो प्रैक्टिस से आना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ न्यूज़पेपर पढ़ा, अपनी स्पीड एक्यूरेसी वो कैप बढ़ाई, अब आपने उसको 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया विद अ टाइमर ऑन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना टाइमर के साथ करना, अदरवाइज वो आपका 3 घंटा खींच ले जाएगा, क्योंकि इतना माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। ये एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 30 मिनट मीन्स 30 मिनट, 30 मिनट में अगर आपने 4 भी कर पाया कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे उसे 5 करो, फिर धीरे धीरे उसे 6 करो। ठीक है, सो आरसी सॉल्व करना। उसके बाद जो भी आप सेकंड रीडिंग में, जब आप फर्स्ट रीडिंग में वर्ड निकालते हो इस आर्टिकल से, वो एक वोकैब बुक में ले लो और उस आर्टिकल को काट के उस हिस्से में चिपका लो। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे, जब इस पॉइंट पे आएंगे, तो जब आप उसे रिवाइज करोगे यू विल फाइंड कि मुझे उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट में भूल चुका हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा आपको क्या पता उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, मीनिंग तो आपके सामने है, बट कभी कभी वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट से भी समझ में आते हैं। तो उसी पैच, अगर वो पैच वहीं पे स्टैपल्ड है तो आप बड़े आराम से उसकी मीनिंग को वहाँ से फेच कर सकते हो। ओके, दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट, इट वाज रिटन इन। ओके, तो वो कैब बुक होना चाहिए आपके पास। थर्ड आपका रीडिंग इंग्लिश ग्रामर, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एलिट ने पूरी तरह से नहीं हटाया है। इफ यू फाउंड दैट देयर वर 4 to 5 क्वेश्चंस, दे वर बेस्ड ऑन ग्रामर एज वेल, जिसमें क्वेश्चन टैग था, है ना, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट थे, तो और अंडरलाइन वर्ड थे, उसे आपको चेंज करना था, तो फ्रेजल वर्ब में चला जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह हटा दिया गया है। फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, और कभी मत ये सोचो कि अगर क्लैट ने और एलेट ने पूरा पैसेज बेस कर दिया तो अब बस पैसेज ही आएगा। दे कैन चेंज, दे कैन टेक डिसीजन देयर ओन बॉडी, तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है अगली बार पैसेज कुछ पैसेजेस और कुछ क्वेश्चन का मिश्रण दे दे। तो आप एकदम ये मत सोचो कि ग्रामर नहीं आना चाहिए। तो आपका जो प्रिपरेशन है बेसिकली वो 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। सबसे पहला आपका है वोकैब, सेकेंड है आपका ग्रामर, तीसरा है आपका आरसीज। तो अगर आप इन तीनों चीज़ें पे लगातार समय दे रहे हो, वोकैब और आरसी आपका एक साथ तैयार हो रहा है, ग्रामर के लिए स्पेसिफिक जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी तरह से आपकी मदद करती है। 10 साल के पेपर को उठाओ, सॉल्व करो, इससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द क्वालिटी दैट एलेट एंड क्लैट सीक फ्रॉम अ कैंडिडेट। ओके, अब उसके बाद आते हैं रिवीजन ऑफ नोटेड वोकैबलरीज। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखो ये पॉइंट है, वोकैबलरी इज समथिंग जो याद कितना भी कर लो कुछ दिन बाद आप भूल जाते हो, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर ऑक्यूपाइड इन सो मेनी थिंग, है ना, आप ऑक्यूपाइड होते हो, तो आपका ध्यान पूरा लगा होना चाहिए कि वोकैब भी रिवीजन करना है। तो लेट्स से कि अगर आपने मॉर्निंग में 10 वर्ड लिखे हुए हैं तो सोने से पहले एंड ऑफ द डे आप उसे रिवीजन कर लो कि 10 वर्ड मैंने कौन से लर्न किए। इट विल टेक नॉट जस्ट 2 मिनट, नॉट मोर देन 2 मिनट्स, अगर आप डिलीजेंटली और रिलीजियसली करते हो तो 10 वर्ड 2 मिनट में आपने रिवाइज कर लिया। फिर एंड ऑफ द वीक में आपने कम से कम 70 वर्ड्स को रिवीजन कर लिया 10 मिनट्स में। उसके बाद एंड ऑफ द मंथ में आपके पास कम से कम 300 वर्ड हो जाएंगे, जिसे आपने कम से कम 30 मिनट दिया और फोकस्ड होके पूरा लर्न करा। ठीक है, इस तरह से इस फेज को अगर आप करते हो तो आपका ये एग्ज़ाम आराम से निकल जाता है। अगर कोई बच्चा इसे नहीं कर सकता तो ध्यान देना कि जो भी कोई चीज़ प्रैक्टिस से आती है उसे किसी शॉर्टकट से नहीं लाया जा सकता। सो वी एनकरेज यू टू रीड न्यूज़पेपर, वी एनकरेज यू टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वी एनकरेज यू टू लर्न द वोकैबुलरी। इफ यू आर doing these 3 things, they are sufficient for your preparation. In case of any doubt, you can reach out to us by commenting below your doubts. We'll reach out to you and we'll be more than happy to solve your doubts. आगे अभी और भी चैप्टर के ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे। Stay tuned till the last of the video. Thank you so much for watching the video. Thank you. Hello students, welcome you all to Manula classes. This is Ratnakar sir, your quants and reasoning mentor. And in this video, in this part, we are going to discuss about the proper strategy for logical reasoning and quantitative aptitude. So we'll start with logical reasoning. So if you have seen CLAT 2021 as well as 2022 paper, you have seen the clear demarcation between analytical and critical reasoning, and you have also seen that critical reasoning has totally outweighed analytical reasoning in all aspects. Okay,
So critical reasoning has become a crucial part in the reasoning section. So in order to score good at critical reasoning part, it is very important that you understand what is the requirement of the exam. See, what we believe, कुछ भी जो है वो ऐसा धुआं नहीं है. Okay, if you know the proper strategy, if you know the proper guidance, then you can crack this part very easily. Okay, the only trouble that students seem to face in this part is they start late. Now if they start late, it is naturally taking, they naturally have less time to cope up with more things, and that is why they are feeling exhausted or they are feeling demotivated while attempting critical reasoning. So what one should do as a student, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग के दिमाग में एक चीज़ पूरा तरह से क्लियर होना चाहिए. देखो, कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है. क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल पैसेजेस आपको पढ़ने हैं और उन्हें सॉल्व करना है. ठीक है, बी वेरी क्लियर ऑन दैट. यस, वी आर मेंटर्स. हम लोग के पास आप लोग को शॉर्टकट सिखाएंगे. हम लोग ये सिखाएंगे कि आप लोग को कैसे एक पैराग्राफ को पढ़ना है, उस पैराग्राफ में जो पॉइंटर्स हैं, जो कंडीशंस, जो क्वेश्चंस, जो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं और जो कंक्लूजन को अपोज करते हैं, उन्हें कैसे समझना है, कैसे टाइम सेव करना है पढ़ने में. बट द क्रूशियल पार्ट इज़, पढ़ना तो तुम्हें ही है, पढ़ना आप लोगों को ही है. सो बी वेरी क्लियर ऑन दिस. अगर तुम्हें पैसेज पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, देन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू क्रैक द क्लैट एग्जाम. मतलब आप क्रैक तो कर लोगे, रैंक आ जाएगा, लेकिन ऐसा रैंक नहीं आएगा कि आप टॉप 100, टॉप 200 में आ जाओ. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट बी टोटली अवेयर इज दैट यू शुड बी गुड इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पैसेजेस. इसके लिए कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू रीड, यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग डेली. ओके, नाउ इफ यू टेक क्रिटिकल रीजनिंग इज कवरिंग 90% ऑफ द सिलेबस. 10% एलिमेंट हम सरप्राइज के लिए रखते हैं हमेशा. हमें एडिशनल एविडेंस मिला है इस साल भी दैट क्रिटिकल रीजनिंग, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो क्रिटिकल रीजनिंग से ही आए थे. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव सीन द पेपर, यू विल सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे एजम्पशंस पे, कंक्लूजन्स पे, ऑन कंक्लूजन्स, ऑन इन्फ्रेंस एंड ऑन थीम. थीम पे 2-3 क्वेश्चन थे, बट मेन दीज 3 वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, है ना. ओके, नाउ आर्गुमेंट, रिकॉग्निशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस या सेंट्रल आइडिया, दीज वर्ड्स and how do they differ, these are important in understanding critical reasoning. And how conclusion depends upon particular premises. See, क्या किया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, उसमें जो पैसेज का सेंट्रल आइडिया है उसको सपोर्ट करने वाले कुछ स्टेटमेंट्स होंगे और उसे अपोज करने वाले, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले कुछ स्टेटमेंट्स होंगे. नाउ यू हैव टू एनालाइज दैट कौन सा स्टेटमेंट, दैट विच स्टेटमेंट और विच प्रेमिसेस, विच सेंटेंस पार्ट आर गोइंग टू सपोर्ट जो कंक्लूजन तुम सोच रहे हो, और कौन से अपोज कर रहा है. स्ट्रेंथ किस पे ज़्यादा है, जिस पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो कंक्लूजन फॉलो करेगा, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा. ओके, नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप एंड एनालॉजीज, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज वेल एज स्टेटमेंट्स, द कॉन्ट्राडिक्शन जिसके बारे में बात कर रहा था, लॉजिकल फ्लॉ और पैराडॉक्स इन द गिवन स्टेटमेंट और प्रेमिसेस, एज वेल एज द इफेक्टिवनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट. आप आर्ग्यूमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हो और उसे कैसे इफेक्टिवली यूज़ करते हो अपना कंक्लूजन निकालने के लिए. सी, एक चीज़ पक्का है, तुम कोई भी पैसेज पढ़ो, तुम्हारे पास 3 मोटिव होना चाहिए. पहला मोटिव, उस पैसेज को पढ़ के कंक्लूजन क्या निकला, पॉजिटिव कंक्लूजन निकला, नेगेटिव कंक्लूजन निकला, एक मिक्स कंक्लूजन निकला. एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, एक चीज़ एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि कंक्लूजन क्या निकला. ये जो कंक्लूजन निकला ये किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके निकला. ओके, और वो चीज़ों के साथ हमें क्या क्या एज्यूम करना पड़ा इस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए. पहला चीज़. दूसरा चीज़, इसके अपोज में जो कंक्लूजन हम सपोर्ट करना चाहते हैं उसके अपोज में कितने स्टेटमेंट्स हैं और उनमें स्ट्रेंथ कैसा है. अगर वो उनमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, देन दिस कंक्लूजन, द वैलिडिटी ऑफ दिस कंक्लूजन मे फेल. ओके, ये है दूसरा. एंड थर्ड, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. ये 3 काम आपको
कोई भी पैसेज पढ़ के एज मेंटल प्रैक्टिस करना है. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्या हो गया इसको. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओवरऑल स्ट्रेटजी, तो ओवरऑल स्ट्रेटजी में हमेशा ये रखना है दैट यू हैव टू सॉल्व इंग्लिश एज वेल एज क्रिटिकल पैसेज. स्टार्ट करना है इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करते और उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस सॉल्व करने हैं. ओके, अप्रॉक्सीमेटली आई एम नॉट टेक अबाउट डेली बिकॉज डेली इस रूटीन को फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इफ़ यू टॉक इन वीकली एटलीस्ट 5 to 6 पैसेजेस यू मस्ट सॉल्व. मैं बोल रहा हूँ पैसेज सॉल्व करने हैं, पढ़ने नहीं है. पढ़ना तो तुम्हें डेली है, बट पैसेज जो तुम लेके बैठोगे तुम्हें डेली मिनिमम 5 से 6 पैसेज सॉल्व करने हैं. किसी भी बुक से पैसेज सॉल्व करो, कोई मॉक टेस्ट लेके पैसेज सॉल्व करो, कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके पैसेज सॉल्व करो, लेकिन करने हैं. दिस इज द कोर थिंग दैट यू मस्ट डेवलप. सेकेंड, यू हैव टू होन योर रीडिंग स्किल्स. ओके, रीडिंग स्किल्स का मतलब देखो, अगर तुम्हें एक पैसेज पढ़ के समझ में नहीं आता है देन इट इज़ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू स्कोर गुड इन रीजनिंग. ओके, सो यू हैव टू होन योर रीडिंग स्किल्स. और रीडिंग स्किल्स होन करने का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ के समझना भी होता है. ओके, तो उसमें जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ योर वोकेबुलरी. तुम्हारी वोकैब्स अच्छी होगी, और तुम्हें वोकैब्स अच्छी अगर नहीं है, पढ़ के समझ में अगर नहीं आता है, तो वोकैब्स तुम्हें अच्छी करनी होगी. ओके, so you have to hone your reading skills. You have to develop a knack to read critical articles, solve passages as much as you can. Okay, this is the complete idea, this is the complete roadmap for critical reasoning. Now if we talk about quants, okay, मैंने देखा है पता नहीं क्यों लोग इतना quant से fear करते हैं, but to be honest, to be really honest, only 15 questions, and if you can focus on 4 to 5 chapters, then out of those 15 questions, 10 to 12 questions you can easily attempt. So there is nothing to leave. अगर तुम ये 4-5 चैप्टर कर लो, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड वन मोर चैप्टर से एवरेज. इफ यू दिस 4 to 5 chapters, then you can clearly without any doubt attempt at least 10 questions to 12 questions in your CLAT exam. So these are loose hanging marks. होता है ना पेड़ में एक लूज हैंगिंग फल झूला रहता है, तो दीज आर लूज हैंगिंग मार्क्स. वाई ओमिट देम, यू शुड टेक देम. ओके, पहला चीज़. दूसरा चीज़, इसका तुम्हारे मैथ्स फियर या मैथ्स पैरानोइया से कुछ लेना देना नहीं है. तुम स्कूल में मैथ्स में जितने भी कमज़ोर हो उसे भूल जाओ, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर. ओके, स्कूल में तुम्हें बड़े बड़े शीट मिलते थे, तुम्हें पूरा का पूरा मैथ्स करना पड़ता था. अगर तुम्हारे लॉजिकल कंक्लूजन में कहीं गलती हो जाए, कोई स्टेप गलत हो जाए, तो भी तुम्हारे नंबर कट जाते थे. और एक बार जब मैथ्स में कम मिलना चालू हुआ, इस साल कम मिला, उसके अगले साल कम मिला, उसके बाद क्या है 2-3 साल ऐसा कम मिलते मिलते एक फियर ऑटोमेटिकली मैथ्स से डेवलप हो ही जाता है कि दैट आई एम नॉट मेड फॉर मैथ्स, मैथ्स मेरे लिए नहीं बना है, छोड़ना है. एग्रीड, नो इशू. बट दिस 15 क्वेश्चंस आर नॉट मैथ्स, दे आर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. क्या बोला है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोला है, मैथ्स नहीं बोला है. ओके, तो ये मैथ्स है ही नहीं, ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है. टेक्निक्स का मतलब क्या है? तुम्हें पूरा प्रोसेस ना भी जानो तो भी तुम्हें आंसर निकालने आना चाहिए. अगर कुछ भी ना जानो तो कम से कम बैक सब्स्टिट्यूशन तो आना चाहिए. जो मैथ्स में ज़ीरो है, ठीक है, वो भी कम से कम बैक सब्स्टिट्यूशन लगा के, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है. ओके, सो दीज 4 to 5 चैप्टर्स इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्लैट में जितने सारे चैप्टर्स दिए हैं उनमें से मैंने 4 से 5 चैप्टर सेग्रीगेट करके निकाल दिए हैं. अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हो देन एटलीस्ट यू शुड रीड दीज 4 to 5 चैप्टर्स. अगर ये 4 to 5 चैप्टर्स पे कमांड अच्छा हो गया, यू कैन इजिली सॉल्व 10 to 12 क्वेश्चन. ओके, उसके बाद आता है बाकी का सिलेबस. तो मैथ अच्छा करने के लिए क्या करें? सी, प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट. ओके, तो प्रैक्टिस तो करना ही है. ओके, रिमेंबर यू हैव टू जस्ट गेट गुड ग्रेड्स. यू डोंट हैव टू डू PhD ऑन मैथ्स, इजंट इट? यू जस्ट हैव टू गेट गुड ग्रेड्स. ठीक, नेक्स्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर ओवरऑल मैथ्स एग्जाइटी और फियर ऑफ मैथ्स. ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ. ओके, जस्ट हैव क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस देम इफेक्टिवली. परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इसके कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए. इन डिफरेंट सिचुएशंस हम लोग इन कॉन्सेप्ट को कैसे लगाते हैं ये तुम्हें आना चाहिए, एंड दैट विल डू, दैट इज़ इनफ. तुम 15 में से 10 क्वेश्चन 100% करके आओगे. ओके, एंड इट इज़ वेरी गुड, इट विल बी वेरी गुड अगर तुम एग्ज़ाम से पहले
30 to 40 अच्छे DI सेट सॉल्व करो. ओके, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.